ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੜੀ ਆ ਦਾਸ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਈ ਭਾਗਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਭਾਗਣ ਸੀ ਇਹਦਾ ਗੋਤ ਸੀਗਾ ਨੱਥ, ਤੇ ਨੱਤ ਗੋਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਨੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਦ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲੀ। ਜਦ ਜਾ ਰਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੋੜ ਲਿਆਓ, ਮੋੜ ਲਿਆਓ, ਮੋੜ ਲਿਆਓ। ਜਦ ਇਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਆਪੇ ਮੁੜ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦ ਮੁੜੂਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੋਚਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਢੁੱਡੀਕੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਨਾਨਸੂ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਜਦ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 60 ਕਮਾਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਢੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਨਾਨਸੂ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਆਸਣ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਨੀਵਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਸੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਸੂ ਹੋਣਾ 'ਤੇ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਦ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਸੂ ਹੋਣੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ, ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਠੰਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਦਲਬਾਜੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ। ਜਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਦਲਬਾਜੀ ਐਸੀ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹਨੇਰੀ ਆਈ। ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੇ ਬੜੇ ਪਏ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਮੀਂਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਝੱਖੜ ਵੀ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਸੂ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਠੱਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਸੂ ਹੁਣੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੱਭੋ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਤੂਫਾਨ ਥੰਮ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਢੱਕੀ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਸੂ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਤਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਦਾਤਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਸੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਦ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਾਤਣ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਸੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪੱਧਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਸੂ ਹੁਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸਣ ਸੀਗਾ ਜਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਛੱਪੜੀ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਸੂ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਛੱਪੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੌਤਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਸੂ ਹੁਣੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਸੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ
कि तुसी जिस ढक्की ते बैठ के भजन बंदगी कीती आ, ये जिहड़ी जगह हैगी है बड़े चुस्त आदमियां दी आ, ते अगर आप इस जगह ते बैठ के बंदगी भजन करते हैं तो ये जिहड़े चुस्त लोकी आ, ये साडियां करामातां ही तकदे रहणगे। सो इन्हां तो बड़े सावधान होने की लोड़ हैगी आ। उस तो बाद फिर बाबा महार नाम सोहना ने बाबा नंद सोहना नूं आख्या सीगा कि जदों मींह नेरी झखड़ाया सीगा ते तुसीं इत्थों अपना आसन चक लेना सीगा ते किसी दरख्त की ओट आसरा लै लेना सीगा। जद ये गल हुई तो फिर बाबा नंद सोहना ने कुछ जवाब नहीं दिता, पर कहन लगे कि हाँ मैनू उस टाइम इस गल का ज्ञान ही नहीं रहा कि उठ के किसी होर पासे हो जावां, क्योंकि जिहड़ी मेरी सुरत सी पूरे नस दे विच खुब्बी हुई सी सिमरन भजन दे। जब ये गल बाबा नंद सोहना ने बाबा महार नाम सोहना ने आखी तो फिर बाबा महार नाम सोहना कहन लगे कि उस रात सानू भी सारा जिहड़ा फिक्र पिया रहा तो साडा ध्यान पूरा आप जी दी वल खिंचिया गया सीगा। तो फिर उस टाइम कहते फिर असीं एक गुप्त चाननी आप जी दे उपर ताण दित्ती सी, ते जिस करके आप जी का झक्खड़ मींह हनेरियां तो बचाव होया सीगा ते तां ये जगह जिहड़ी सुक्की सीगी। सो जदों बाबा महार नाम सोहना ने ये गल बाबा नंद सोहना ने सांझी कीती सी, फिर बाबा नंद सोहना ने बाबा महार नाम सोहना के पैर फड़ लए सीगे। उस तो बाद फिर ये जिहड़ा अस्थान हैगा इनू ना संत महापुरख बाबा उजागर सिंह हुणां ने जिहड़े सीगे इस अस्थान के दर्शन कीते सीगे। ये जिहड़ा अस्थान अज भी है ढक्की दे जिहड़ा अजीतवाल सड़क वा उहदे कोल हैगा, पर अजे तक महापुरख दसदे सी कि इस अस्थान की उत्ते कोई हजे इस तरह की निशानी खड़ी नहीं हुई। सो जब कभी भी समा बनेगा ये जिहड़ा अस्थान है जरूर उजागर होगेगा। वो छपड़ी भी जिहड़ी है संत महापुरख बाबा उजागर सिंह जी दसदे सी कि अज भी उस तरह सुक्की पई है। एक बार महाराजा भुपिंदर सिंह पटियाले वाले ये महापुरख बाबा महार नाम सोहना दे दर्शन करन आए। जब दर्शन करन आए तो इन्हें ने बड़े निमरता भाव दे नाल आके बाबा जी के चरणों के विच मत्था टेकिया। जब मत्था टेकिया उस तो बाद फिर महाराजा भुपिंदर सिंह ने महापुरखों के चरणों 'च बेनती की कि मैं जिन्ने भी राजे आ इन्हां दी है ना एक प्रधानगी चोण हुंदी है, वो मैं लड़नी है तो मैं बलैत जाना हैगा। इस करके तुसीं कृपा करो कि मैनू ये जिहड़ी प्रधानगी की चोण आ ये जिता दिओ। जब इन्नी गल हुई तो फिर बाबा महार नाम सोहनी राजे भुपिंदर सिंह नूं कहण लगे, कहंदे भाई अगर तैं चोण जितनी है तो फिर इस तरह कर 1.25 लाख पाठ जपजी साहब दा करा ते नाल 1.25 लाख दान रुपया भी जिहड़ा है ना वो भी कर। इस तरह पाठ करन दे नाल ते दान पुण्य करन दे नाल जिहड़े तेरे पुण्य हैगे आ वो वध जाणगे ते इस तरह तेरी जिहड़ी आ इस मैदान दे विच फतेह हो सकदी आ। जद ये जिहड़े सीगे बचन बाबा महार नाम सोहना ने राजा भुपिंदर सिंह ने कीते ते फिर राजे भुपिंदर सिंह ने दूसरी बेनती ये कर दित्ती कि मेरे उत्ते एक मुकदमा हैगा, कृपा करो भी उस मुकदमे तो मैं बरी हो जावां। जद ये गल हुई तो बाबा जी कहण लगे कि यह मुकदमा होर कोई नहीं करदा हैगा, ये तेरा वजीर ही करदा हैगा। इस करके तू वजीर नूं उठा दे तो फिर तू अपने आप ही बरी हैगा, क्योंकि जब तक वजीर विच रहेगा है ना तब तक ये मुकदमा तेरे सिर ते मड़िया रहेगा। जद इन्नी गल हुई तो उस तो बाद फिर बाबा महार नाम सोहना राजे भुपिंदर नूं आख्या, कहंदे देख दूसरी गल ये हैगी आ कि तैनूं एक कॉल होर करना पवेगा। वो कॉल ये हैगा कि जदों तू बलैत जावेगा या प्रधानगी जितनी हैगी आ ते तेरियां जिन्नियां भी विआहता राणियां हैगियां इन्हां नूं बेशक तू अपने पास रख ला, पर बाकी जिन्नियां भी औरतां हैगियां उन्हां नूं घरों घरी पहुँचा दे। ये जिहड़ा वचन हैगा तैनूं मनना पऊगा। इन्नी गल हुई तो देखो हुण प्रधानगी की चोण का लालच ते दूसरा मुकदमे तो बरी होने की लालसा जिहड़ी सी महाराजा भुपिंदर सिंह दे मन 'च सी। उसने बाबा जी के सामने दोनों वचन मान लिए ते नाल ये भी आख्या कि जदों मैं बलैत तो वापस आऊँगा तो मैं आप जी के वचनों ते पूरा पैरा दूँगा। ये कह के तो फिर जिहड़ा राजा भुपिंदर सिंह सीगा ये जद प्रधानगी चोण लड़न वास्ते जब बलैत गया सीगा ते उस टाइम जदों ये बंबई बंदरगाह तो चढ़िया सी, इहदा एक अंग्रेज मित्र सीगा। जिहदा अंग्रेज मित्र सीगा ते इस अंग्रेज मित्र दे नाल महाराजा भुपिंदर सिंह ने कोई पैसों की डील कीती सी, तो उन्होंने ये भी कहता सीगा कि मैं आप जी दे नाल जो पैसे की डील कीती है वो मेरा वजीर मेरे बलैत जाने तो बाद आप नूं पैसे दे देवेगा। सो बलैत जाने तो पहला महाराजा भुपिंदर सिंह ने इहदा एक वजीर सीगा दया किशन कौर, उसनूं जिम्मेवारी दे दी कि तैं 1.25 लाख रुपया रखना अपने कोल, ये 1.25 लाख रुपया दान करना हैगा। दान करन दे विच किसे दे नाल भी कोई वध घट नहीं करना, विचे ही गुरुद्वारे साहब जिन्ने भी आ बाकी मंदिर वा मस्जिद सब नूं दान करना हैगा। ते मेरा एक मित्र अंग्रेज बंबे दा हैगा, उस दे नाल भी मैं पैसे दे नाल कुछ डील कीती आ, बाकी पैसे इन्ने आ उस नूं दे देने ते मेरे आउण तो पहला ये सारे काम निबेड़ लेने।
उस टाइम तो जिहड़ा किशन कौल वजीर से इन्हें हाँ च हाँ मिलाती, पर जदों महाराजा जी भुपिंदर सिंह जी वलैत चले गए उस तो बाद जिहड़ा किशन कौल वजीर सीगा इसने इस पासे कोई ध्यान नहीं दिता। पर जद प्रधानगी की चोण जितण तो बाद महाराजा भुपिंदर सिंह वापस फिर बंबई आया, तो जब बंबई आया ਇਹਦਾ फिर जिहड़ा अंग्रेज़ मित्र से इनू उत्थे बंदरगाह ते मिलिया, उन्हें सब तो पहला इनू प्रधान की चोण जितण के उत्ते बधाई दी सी। बधाई देण तो बाद फिर उन्हें याद कराया सगा कि मैं आप जी नू पैसों बारे आख्या सगा। सो जद इन्हें गल की फिर महाराजा भुपिंदर सिंह ने कहा कि मेरा वजीर किशन कौल ने तेनों पैसे नहीं दिते, तो फिर अंग्रेज़ ने आख्या सगा कि अजे तक तो मैनू एक निक्का पैसा नहीं पहुँचा। फिर महाराजा भुपिंदर सिंह ने अपने मित्र अंग्रेज़ नूं आख्या सगा कि चल ठीक आ, मैं पटियाले जाके सारी पुछ पड़ताल करांगा, उस तो बाद फिर तेरे नाल गल करांगा। ये कह के जदों महाराजा भुपिंदर सिंह पटियाले आए तो पटियाले जिन्ने भी सरकारी अमीर वजीर सी सारे नूं बधाइयां देण आए। जद बधाइयां देण आए तो उस टाइम महाराजा भुपिंदर सिंह का एक ड्योढ़ी बरदार जिहदा नाम सी किशन सिंह, महाराजा भुपिंदर सिंह ने किशन सिंह नूं अपने पास बुलाया तो उसनूं आख्या कि मैं दया किशन कौल नूं 1.25 लाख रुपया दिता सीगा ते उसने ये पैसे जिहड़े आ मेरे कहे दे अनुसार किते वरते नहीं आ, तो मैं इसकी पड़ताल करांगा कि उन्हें ये पैसे किहनूं दिते आ जां नहीं किहनूं दिते, ये सारी पुछ पड़ताल करके फिर मैं देखदा हैगा। जद इन्नी गल हुई तो उस टाइम ड्योढ़ी बरदार जिहड़ा किशन सिंह सीगा ये दया किशन कौल दा मित्र सीगा, इन्हें जाके रात नूं किशन कौल नूं दस दिता कि महाराजा पटियाले ने तेरे नाल ये जो तैनूं जिम्मेवारी दिती सी उहदी पड़ताल करन दा मैनूं सारा हुक्म सुना दिता हैगा। जद इन्नी गल होई सी तो फिर इहदा वजीर किशन कौल भी जिहड़ा उन्हां टाइमां 'च ताड़ गया सीगा। पर जदों महाराजा भुपिंदर सिंह नूं सारे ने बधाई दिती है किशन कौल भी आया, जद इन्हें बधाई दिती तो महाराजा पटियाले ने इहदी बधाई तो मंजूर कर लई, पर इहदे नाल कोई खास गल नहीं कीती। जद कोई खास गल नहीं कीती फिर किशन कौल भी तड़ गया कि महाराजा अंदरों मेरे नाल नाराज़ हैगा, तो इस करके किशन कौल नूं अपने जिहड़ा 1.5 लाख रुपया महाराजा पटियाले ने दिता सीगा उहदा फिर फिक्र पै गया। जद फिक्र पै गया तो फिर किशन सिंह जिहड़ा इहदा ड्योढ़ी बरदार मित्र सीगा उन्हें किशन कौल नूं रातों रात जिहड़ा सीगा घरों भजाता तो कहता कि पटियाला छड्ड के तू किते दूर निकल जा। जद ये गल होई सी अगले दिन जद किशन कौल दा भजन दा महाराजा पटियाले नूं पता लगा सीगा, फिर उन्हें किशन सिंह नूं अपने पास बुलाया सीगा तो उसनूं आख्या सीगा कि ये सारा कुछ तैं मिल वरत के कीता हैगा, इस करके किशन सिंह के घर दे विच भी महाराजा पटियाले ने जद पुलिस का छापा मराया सा तो ये घरों भी फिर सरकारी खजाने विचों गायब हुई वस्तुआं प्राप्त हो गई सी। इस करके किशन सिंह नूं भी महाराजा पटियाले ने अंदर जेल 'च बंद कर दिता सीगा। तो किशन कौल जिहड़ा भज गया सीगा महाराजा पटियाले ने उस नूं राज द्रोही करार दे के पुलिस नूं ये आर्डर किया सीगा भी जिथे भी वो मिलता हैगा उन्होंने फड़ के गिरफ्तार करके काल कोठड़ी 'च बंद करना हैगा। उस तो बाद महाराजा पटियाले ने फिर जिहड़ा सीगा बाबा महारनाम सोहना दे पास महाराणी दलीप कौर नूं भेजिया सीगा कि तुसीं है ना बाबा जी के चरणों 'च बेनती करो कि मैं आप जी के दर्शन करना चाहुंदा, तो क्योंकि तुसीं मैनूं प्रधान सारे राज्यां दा बनाया हैगा तो इस करके मैं आप जी का शुक्रिया करना चाहुंदा हाँ। उस तो बाद फिर महाराणी दलीप कौर जब बाबा जी के पास टिल्ले ते आई सी, इन्हें आके जदों बाबा जी के चरणों 'च बेनती की उस टाइम दसदे आ कि एक पटियाले का कोई जिहड़ा आदमी सीगा वो बाबा जी के पास आके रोन लग पिया सी। जद रोन लग्या तो बाबा जी ने आख्या भी भाई की गल तू रोंदा क्यों आ, तो उन्हें कहा कि महापुरखों मेरी कोई नहीं सुनता, इस करके मैं आप जी के चरणों 'च आया है कि गरीब की लाज बांह तुसीं रख सकते हैं। तो बाबा जी कहन लगे कि दस की गल है, तो फिर उन्हें दस्सिया सीगा कि मेरी एक नौजवान लड़की सुंदर हैगी आ तो महाराजा पटियाला भुपिंदर सिंह उस नूं जबरी अपने महल दे विच खड़ना चाहुंदा हैगा, तो मेरी इत्थे कोई बस नहीं चलती, केवल तो केवल तुसीं मैनूं बचा सकते हैं। जां ये गल उस पटियाले वाले आदमी ने बाबा महारनाम सोहना नूं दस्सी सी उन्हां टाइमां दे विच, ते उस टाइम महाराणी दलीप कौर कोल बैठे सी तो बाबा जी महाराणी दलीप कौर वाल मूँह करके कहण लगे कहंदे देख बीबा आ तेरे राज 'च दस की हो रहा हैगा। मैं महाराजा पटियाले नूं पहलां ही ये गल आखी सीगी कि अगर तू साडे दर्शन करने आ जां साडा वचन मनना हैगा तो जिन्नियां विआहतियां राणियां हैगियां तू अपने पास रख ला तो बाकी जिहड़ियां औरतां हैगियां उन्हां नूं घरों घरी पहुँचा दे। पर राजा लगदा अजे भी नहीं टलदा हैगा, अजे भी अपने ये जिहड़े जो कुकर्म हैगा
इन्हां दे विच पूरी तरह अजे भी लगा होया है कि मैं एक बच्ची नूं ये बगला के जां जबरी अपनी शक्ति नाल चुक के अपने महलां 'च खड़ना चाहुंदा हैगा। इस करके जदों बाबा जी ने ये ताड़ना महाराणी दलीप कौर ने कीती तो महाराणी दलीप कौर हत्थ जोड़ के बाबा जी दे अगे खड़ गए सी ते कहण लगे बाबा जी कि मैं इहदे विच कुछ नहीं कर सकदी क्योंकि मैं तो एक औरत हैगी हाँ, इस करके मेरा इहदे विच कोई नहीं। तो बाबा जी कहण लगे कि तेरे कहे दे उत्ते असीं महाराजा पटियाले नूं दर्शन दित्ते सी ते इस दर्शनां दे कारण ही असीं उस नाल बचन कीते सी, उहनूं प्रधानगी दवाई सी। पर हुण फिर भी जे वो कुकर्म करनों नहीं हटदा तो फिर तुसीं उसनूं आख देना कि अज तो बाद असीं उसनूं दर्शन नहीं देने, ना वो साडे पास आवे इत्थे, ते जे वो आया भी आ ते असीं उसनूं इस टिले दे उपर अंदर आउण दी इजाजत नहीं देनी। जद ये बचन महापुरखां ने महाराणी दलीप कौर नाल कीते तो फिर महाराणी दलीप कौर जी जिहड़े सीगे वो बचन सुन के चुप कर गए तो कहण लगे कि महापुरखों मेरी सेवा तो आप जी के चरणों 'च सदा रहेगी, आप मैनू ना त्यागो। तो बाबा जी कहण लगे कि भाई तू अपना फिक्र ना कर, तू अपने नेम के अनुसार जो सहज पाठ आ गुरबाणी का वो जरूर सुनिया कर, पर महाराजा पटियाले का अज तो बाद कोई भी सुनेहा दर्शनां का किसी तरह का कोई भी काम तू साडे पास नहीं लियाउणा हैगा। जद ये एक टुक जवाब महापुरखा ने महाराणी दलीप कौर नूं दिता सी, फिर महाराणी दलीप कौर जिहड़े सी चुप कर गए सी। उस तो बाद फिर महाराजे भुपिंदर सिंह होना ने बाबा जी दे अगे जिहड़ियां सी वो कई वार बेनतियां अपने प्रति दबंदियां द्वारा कराइयां सी, पर बाबा जी ने उहदी बेनती कोई भी स्वीकार नहीं सी कीती। सो जिहड़ा आदमी बाबा जी दे पास अपनी लड़की दी फरियाद लैके आया सी उन्हां टाइमां 'च, तो बाबा जी ने उहनूं वचन दिता सीगा कि अज तो बाद तेरी लड़की वाल महाराजा पटियाला की अगर कोई जमदूत भी तेरी लड़की नूं जबरी लैण आऊगा तो वह उत्थे तक पहुँच नहीं सकता हैगा। ये भी वचन बाबा जी ने उस टाइम उस प्रेमी दे नाल कीते सीगे, पर महाराजा पटियाले ने अपनी भुल दा एहसास होया सीगा, पर बहुत सारियां बेनतियां करन उत्ते भी महापुरखां ने उसनूं सदा वास्ते नकार दिता सीगा। सो दास इन्ने ही वचन आप सारियां संगतां नाल साझा करदा होया खिमा दा जाचकवा जी। होइयां बेअंत भुलां चुकां दी खिमा बख्शणी, सो फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।